صبح نور کی پہلی کرن جب ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کو چومتی ہے تو ان یادوں کو بھی تازہ کرتی ہے جو علمی دنیا کی تاریخ کا روشن باب ہیں۔ یہ وہ منبع فیض ہے جہاں 1925 میں ایک ایسی علمی تحریک کا آغاز ہوا جس نے آنے والے وقت میں اسلام کی ترویج و ترقی کے لیے مینار نور کا فریضہ سر انجام دینا تھا۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ غلامی کے اس دور میں روشن ہونے والے ایک ننھے سے چراغ کی کہانی ہے جس نے ایک جہان علم کو منور کر دیا۔ یہ ایک خیال سے جیتا جاگتا شہر آباد ہونے کی داستان ہے اور ایک بیج کے شجر سایہ دار بننے کی تاریخ ہے۔ مسجد امیر السالکین سے ملحق یہ کمرہ اور اس کے نیچے یہ 4 چھوٹے کمرے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا کل ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں، اور یہ کل دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے جذبوں کو نئی جہت عطا کرتا ہے۔ اور یہ ہے آج ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ کل سے آج تک کا یہ سفر حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ اور ان کے بزرگوں کی دین اسلام سے قلبی وابستگی کا مظہر بھی ہے۔ غازی الاسلام حضرت پیر محمد شاہ صاحب نے اپنے سجادہ نشین پیر محمد کرم شاہ کو دین کی خدمت کے لیے ہر پہلو سے تیار فرمایا۔ تکمیل علم کے بعد آپ نے 1957 میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی نشاط ثانیہ کا آغاز کیا اور ایسے نظام تعلیم کو متعارف کروایا جو قدیم اور جدید علوم کا حسین امتزاج ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ دینی درسگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ جدید علوم کو بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، اور یہ روایتی مدرسے کی بجائے جدید یونیورسٹی کا منظر پیش کرتا ہے۔ اس کی وجہ محض شاندار عمارت نہیں بلکہ پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ کی خوبصورت فکر ہے۔ ان کے خیال میں دینی مدارس کا نصاب تعلیم ایسا ہونا چاہیے جس سے فراغت پانے کے بعد انسان میں علوم جدیدہ سے پوری واقفیت اور حالات حاضرہ پر گہری نظر ہونے کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ میں ٹھوس قابلیت پیدا ہو جائے۔ یہ فکر ایک نظام تعلیم کی روح ہے جو ماہرین تعلیم کے لیے مینار نور ہے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں داخلے کے لیے میٹرک پاس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس نظام تعلیم کے تحت حصول علم کا دورانیہ 9 برسوں پر محیط ہے، جس کی تقسیم کار اس طرح ہے۔ پہلے 2 برسوں میں عربی و فارسی کی گرامر پڑھائی جاتی ہے، تیسرے سال میں ادیب عربی اور چوتھے برس میں عالم عربی کا امتحان ادارے کے بورڈ کے تحت لیا جاتا ہے، 5ویں برس میں FA کا امتحان سرگودا بورڈ سے دلایا جاتا ہے، 6 سال میں فاضل عربی فرسٹ ایئر کا امتحان دارالعلوم کے تحت اور 7ویں سال فاضل عربی کا امتحان سرگودا بورڈ سے دلایا جاتا ہے، اور 8ویں سال میں BA کا امتحان پنجاب یونیورسٹی یا سرگودا یونیورسٹی سے دلایا جاتا ہے۔ آخری سال دورہ حدیث شریف کی تکمیل کا سال ہے۔ اس میں امتحان کے ساتھ ساتھ طالب علم کو تجویز کردہ موضوع پر مبسوط مقالہ بھی تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ طلبہ کی تعلیمی استعداد کو پرکھنے کے لیے ماہانہ بنیادوں پر ٹیسٹ اور 6 ماہی اور 9 ماہی امتحانات کا طریقہ رائج کیا گیا ہے، اور اس امر کو یقینی بنایا گیا ہے کہ کلاس میں گزشتہ اسباق کو لازمی سنا جائے اور استاد نئے لیکچر کے لیے بھرپور تیاری کے ساتھ کلاس میں آئے۔
इस मकसद के लिए सेक्शन बंदी पर खास तवज्जो दी गई है। हर सेक्शन में 20 से 25 तालिबे इल्म रखे गए हैं। तालीम, निसाब, इम्तहान और उनके मुतलका अमूर को बखूबी सरंजाम देने के लिए दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया में मरकजी तालीमी बोर्ड तश्कील दिया गया है, जिसका चेयरमैन इदारे का सरबराह होता है। सिलेबस कमेटी दारुल उलूम के निसाब के मुताबिक अमूर की निगरानी करती है। 20 शोबों पर मौजूद एक बोर्ड ऑफ स्टडीज मौजूद है। हर शोबे का सदर और 2 मुआवन इस बोर्ड के मेंबर हैं। मरकजी इदारे के जुमला इम्तहानात और झेली इदारों के सालाना इम्तहानात लजनतुल इम्तहानात के ज़ेरे निगरानी होते हैं। नताइज भी मरकजी इम्तहानी बोर्ड तैयार करता है ताकि झेली इदारों की तालीमी कारकर्दगी का इल्म होता रहे। आम दरसगाहों और सरकारी तालीमी इदारों में कामयाबी के लिए 33% नंबर दरकार होते हैं, जबकि दारुल उलूम में साल अव्वल के तलबा के लिए 65% और साल दोम के लिए 60% और आखिरी क्लासेस के लिए 50% नंबर का मेयार मुकर्रर किया गया है, ताकि इनकी कुव्वत फिक्रो अमल फजू से फजू तर हो और वो जिम्मेदार शहरी बनकर मुल्क और कौम की खिदमत एहसन तरीके से कर सकें। और यही वजह है कि हर साल सरगोदा बोर्ड और पंजाब यूनिवर्सिटी सरगोदा यूनिवर्सिटी के इम्तहानात में दारुल उलूम के तलबा नुमाया पोजीशन हासिल करते हैं। दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया चूंकि महज एक तालीमी इदारा नहीं है बल्कि एक तरबियती इदारा भी है, इसलिए यहाँ उस्ताद और शागिर्द के दरमियान इस्लामी रवायती अक़दार का रिश्ता मौजूद है। इस दरसगाह के उसातिज़ा महज दारुल उलूम के मुलाजिम नहीं हैं, बल्कि वो इस दरसगाह के साबिका तालिबे इल्म होने के नाते एक वाबस्तगी और एक ऐसा जज्बा रखते हैं जो हजरत ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करमशाह अल अज़हरी की सोचों का अमीन है। इस वक्त अदारा हज़ा में 40 से ज़ायद उसातिज़ा इकराम खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। मुझे सन 57 में यहाँ भेरा शरीफ हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब इस इदारे की नशत सानिया का आगाज किया और जदीद और कदीम तालीम जो है इन दोनों को इकट्ठा लेकर चलने का प्रोग्राम बनाया, तो आपने मुझे मेहरबानी फरमाते हुए आपने इस इदारा में जो है वो दाखिल फरमा लिया। मैंने तकरीबन 10 साल यहाँ ये जो निसाब तालीम दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया का मुरतब किया गया था, इसको 10 साल मुकम्मल किया। सन 67 में जब इससे फरागत हासिल हुई तो हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ही मेरा इंतखाब ये फरमाया कि आप जो है इसी दारुल उलूम में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देंगे। मैं उस वक़्त से लेकर आज तक यही फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस निसाब तालीम में इब्तिदा में बहुत से लोगों ने इसकी मुखालफत की, लेकिन आज वही लोग ये फ़ख्र करते हैं कि दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया ये एक मिसाली दरसगाह है और इसी के मुताबिक चाहिए कि तमाम दीनी मदारस जो है वो अपने तलबा के लिए वही निसाब रैज करे जो दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया का जो है निसाब तालीम है। यहाँ तलबा को हर किस्म की सहूलियात है, तालीम मुफ्त है, रिहाइश मुफ्त है, खाना मुफ्त है। तमाम के तमाम असातिज़ा किराम दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया के फारक है और वो सब के सब बेहतरीन अंदाज में बड़ी मेहनत के साथ दिल लगी के साथ और उन बच्चों की खैर खाई और बेहतरी के लिए हम वक्त जो है वो हाजिर होते हैं और उनकी रहनुमाई करते हैं। इंशाअल्लाह हमारा इरादा है कि यहाँ हम यूनिवर्सिटी कायम करें। दारुल उलूम में जहाँ तलबा एक तरफ फर्शी नशिस्त पर बैठकर इल्म के जीने तय करते हैं, वहाँ दूसरी तरफ आली शान कंप्यूटर लैब में जदीद तकाज़ों के मुताबिक मालूमात हासिल करते हैं। मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर को इस्तेमाल करते हुए तलबा एक खूबसूरत लेक्चर हॉल में अपने आप को जदीद तालीम से हम आहंग करते हैं। I really enjoy coming here and I studied quite a lot about Islam. That was originally what I came to learn and I'm very happy over here. I'm given a lot of facilities. I have very good teachers and who are very experienced and are teaching me very nicely and I'm proud that I am here. तालीम महज हसूल इल्म का नाम नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी को संवारने और निखारने के लिए बुनियाद फ्राहम करती है। इसके लिए निसाब और हम निसाबी सरगर्मियां मिलकर ही तलबा के किरदार की तामीर और सीरत की तश्कील करती हैं। दारुल उलूम की इंतजामिया और असातिज़ा इस बुनियादी ख्याल से बखूबी आगाह हैं और यही वजह है कि यहाँ तलबा को तफरीह तबा के लिए खेल और वर्जिश की सहूलियात मुयस्सर हैं। दूसरी तरफ
तश्कील सीरत और किरदार के लिए नमाज पंचगाना, शब बेदारियों और दीगर इस्लामी महाफिल का इनेकाद किया जाता है। अल्फ्रीद ऑडिटोरियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तलबा की तहरीकी और अदबी सरगर्मियां परवान चढ़ती हैं और इजहार व बयान की तरबियत होती है। इजहार व बयान के साथ साथ तहरीर व तहकीक पर एक खुसूसी तवज्जो दी जाती है। मुकालाजात की तैयारी, निसाबी और हम निसाबी कुतुब के मुतालाजात के लिए ज़ियाउल उम्मत लाइब्रेरी में 20,000 से ज्यादा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कुतुब का जखीरा मौजूद है, जिससे इदारे के तालिब इल्म अपने हुस्न ज़ौक़ के मुताबिक सलाहियतों को जिला बख्शते हैं। इस लाइब्रेरी के क़याम के लिए ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने खुसूसी दिलचस्पी ली। आप रहमतुल्लाह अलैह बैरूनी मुमालिक के दौरों के बाद तहाइफ की बजाय दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया के लिए कीमती और नायाब कुतुब लाया करते थे। दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया के 100% तलबा हॉस्टल में रहते हैं। अल कमर हॉस्टल को तलबा की जरूरियात के मुताबिक बनाया गया है, जहां इनके कयाम के साथ साथ खाने पीने के बेहतरीन इंतजामात मौजूद हैं। नमाज ईशा के बाद हर तालिब इल्म के लिए जरूरी है कि वो अपने कमरे में मुताले की नशिस्त पर मौजूद रहे और मुताले का ये सेशन 11 बजे तक जारी रहता है। दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया में ज़ेर तालीम तलबा की तादाद 800 से जायद है। मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। मैं दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ में तकरीबन 30 साल से बतौर कैशियर खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ। दारुल उलूम की तमाम आमद व खर्च का हिसाब मेरे ज़िम्मा है और इसका सालाना बजट 1 करोड़ के लगभग है। ये तमाम अखराजात जो हैं वो तलबा की तालीम, खाना, रिहाइश और उनकी वेलफेयर तिब्बी इमदाद में खर्च किया जाता है। हम बाकायदा चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसका ऑडिट कराते हैं। आखिर वो दिन आता है जिसका 9 बरस इंतजार किया जाता है। एक इल्म सीरत से आरास्ता तालिब इल्म अपने दामन में दीन और दुनिया के इल्म की नेमतें समेटे अमली जिंदगी में अपना किरदार अदा करने के लिए उसातिज़ा की दुआओं के साथ आज़मे मंजिल होता है। ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़री रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चों के साथ साथ बच्चियों की तरबियत को नजरअंदाज नहीं फरमाया। आपके ख्याल के मुताबिक एक खातून की तरबियत एक खानदान की तरबियत है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए 1990 में अल कुलियतुल गौसिया लिल बनात का कयाम अमल में लाया गया और इसके लिए 5 साल का निसाब तरतीब दिया गया, जिसमें तालबात को FA, फाजिल अरबी और BA करवाया जाता है। तरबियत और सीरत की बेहतरीन तश्कील की वजह से अल कुलियतुल गौसिया लिल बनात की शोहरत मुल्क और बैरून मुल्क फैल चुकी है। अंदरून मुल्क दूर दराज इलाकों से 540 बच्चियां मरकजी कुलियतुल गौसिया में ज़ेवरे तालीम से आरास्ता हो रही हैं, जबकि मुल्क में 50 से ज्यादा शाखें खवातीन को इल्म के नूर से मुनव्वर करने के लिए मसरूफ अमल हैं। इन 2 बड़े तालीमी नेटवर्क के साथ साथ कुरान पाक को सीनों में महफूज रखने के लिए शोबा तहफीजुल कुरान भी पूरी मेहनत और तनदही के साथ काम कर रहा है। अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरान बना दे, कुरान के अहकाम पे भी सबको चला दे। 300 से ज्यादा बच्चे हिफ्ज़ कुरान करीम के मरहले से गुजर रहे हैं। मजमूई तौर पर दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया और कुलियतुल गौसिया की 132 शाखें इस वक्त मसरूफ अमल हैं और इस इल्मी नेटवर्क से कमोबेश 25,000 तलबा और तालिबात अपने दामन को इल्म की दौलत से मालामाल कर रहे हैं। जिस तरह सूरज की रोशनी किसी भी रंगो नस्ल के लिए मखसूस नहीं, ऐसे ही दारुल उलूम के इल्म की रोशनी हर किस्म की फिरका वाराना आलाइशों से पाक है। जिस वक्त शाम का सूरज भेरा के मगरब में गरूब हो रहा होता है तो उसकी खामोशी ऐसी ही होती है जैसे दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया खामोशी के साथ तालीमी और दीनी मैदान अमल में खिदमत सरअंजाम दे रहा है। रहे ता अबद फरोजा तेरा खावरे दरख्शां,
तेरी सुबह नूर अफशा कभी शाम तक न पहुंचे।